Hello, my dear students. Good morning to one and all. So, dear students, today we will discuss here about the exercise of lesson number 3. Okay. So, my dear students, I am requesting you please open your textbook and notebook also. Today I am going to explain here the question answer of your lesson number 3 of EVS subject. Okay. So now here is the title class 4 subject EVS lesson number 3 food is life. Okay, so as you know that we have already completed this lesson, means you learned very well and I taught, means that process had been done. Okay, and today we are going to see the question and answer. Okay, so just turn the page of your textbook, page number I think 27 page number. Actually here one by one we are going to see the question and answer. Okay, let's revise. Now here is the first question. यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया है चैप्टर 3 जो कि हमने बेटा हाल ही में अभी कंप्लीट किए हैं, तो उसके आज क्वेश्चन आंसर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन 1, इसमें ए दिया है put a tick on the correct option. Okay, so here is also on the board. I have done already that activity. Just you have to observe and just write in your notebook. Okay, or tick in the particular place which is given in your textbook. Okay, जो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, सर्कल दिया हुआ है, उस प्रॉपर या फिर अप्रोप्रिएट जो सर्कल है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। ओके, वो भी पेंसिल से। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1. A put tick on the correct option. Now here is the first. Actually, what is the first option is there? Make up means blank space. Just listen carefully. Now first one, blank space makes up nearly 70% of our body weight. ठीक है, means which is the correct option? 3 option is given there allotted for you. First one fats, second carbohydrates and third water. So which is the correct option? Option number C, means last option. So water will be the correct. So just tick that option by your pencil. आपको पेंसिल से उस ऑप्शन को टिक करना है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर मेक्स अप नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। ठीक है ना, 70% जो है हमारा बॉडी वेट बनाने में वाटर हमारी सहायता करती है, मदद करता है। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट. नाउ वी विल सी ऑन सेकंड. सेकंड मींस एक्चुअली व्हाट इज द सेकंड? इट इज आल्सो blank space help us to keep our bones and teeth strong. ठीक है, हमारी जो हड्डियां हैं बॉडी की, बोन्स और हमारे टीथ, कौन सा ऐसा द्रव पदार्थ है जो मजबूत बनाता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. सो फॉर दिस स्टेटमेंट आल्सो 3 ऑप्शन गिवन फॉर यू. फर्स्ट चॉकलेट, सेकंड कैल्शियम एंड थर्ड कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, इन 3 में से जो सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? विच इज द सुटेबल और अप्रोप्रिएट ऑप्शन? ओके, नाउ सो नंबर 3 वी आर सेकंड वी आर सीइंग. सो कैल्शियम इज द करेक्ट वन. ओके, मींस नंबर बी. सो आपको कैल्शियम को क्या करना है? टिक करना है. नंबर 3 देखिए इसके बाद, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय. ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रीजिंग है, पिकलिंग है, बॉइलिंग, ये जो प्रोसेस है दैट आर द प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. ठीक है, तो प्रिजर्विंग फूड की हमने जो मेथड्स देखी है उसमें से इस लेसन में स्टेटमेंट में दिया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय. कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से फूड का प्रिजर्वेशन किया जाता है? Now salting, boiling and freezing. 3 methods are given there. So which is the correct one? Boiling. Okay, so boiling is the correct option. So that is the third one. Okay, completed, understood. Then next one we will see here. Number 4 means blank space keep our body warm and give us a lot of energy. ठीक है, means हमारे बॉडी को वार्म और लॉट ऑफ एनर्जी देने में कौन सहायता करता है?
also three option is available for you there. Means first fats, second vitamins, and third means C water. Okay, so the first one means option number A, fats is the correct. Okay, fats क्या है, सही ऑप्शन है. Understood? So dear student, just put that option in place of blank space. Okay, जो blank space दी है उसमें आपको put करना है, रखना है. Okay, now we will see the next one means B. Give one word for the following. ठीक है ना, आपको बुक में भी ऑब्जर्व करना है, टेक्स्ट बुक में भी देखना है. नाउ नंबर बी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ठीक है ना, नीचे जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसके लिए आपको एक वर्ड चुनना है या फिर देना है. अंडरस्टूड? So actually here number A means number 1 is given there. So actually in your textbooks, look at the textbook and just given there the statement, and before that in front of that statement there is a blank space. Okay, so in that space you have to put the correct word. Okay, means give one word, so the word should be correct. Now the first one is body building nutrients. Okay, अभी जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जो पढ़े हैं तो उसके बारे में विच इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन्स. ओके, क्या है वो, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हमारी सहायता करती है, मदद करती है. सो दैट इज द फर्स्ट वन, ये पहले का करेक्ट आंसर है. ओके, then next one I am reading the statement from your textbook. Actually next one is food that can be eaten raw. Okay, यानी ऐसे फूड जिसको हम कच्चे खाते हैं. अभी ऐसे कौन से फूड है जिसे हम कच्चा खाते हैं? ऑब्वियसली द फ्रूट विल बी देयर. मीन जो फल है जैसे एप्पल है, बनाना है, उसको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड दैट्स व्हाई द फ्रूट इज द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स फ्रूट को हम कच्चा खाते हैं. ठीक है, या फिर सलाद है. ठीक है ना, सलाद जिसको हम कोई फंक्शन में जनरली या फिर हमारे डेली रूटीन का जो डाइट है उसमें भी हम सलाद का यूज कर सकते हैं जिसको हम कच्चा खाते हैं. मीन्स उसको कुक करने की जरूरत नहीं होती. दैट्स द करेक्ट आंसर नंबर 2. नाउ नंबर 3, a diet containing all the nutrients in proper quantity. Okay, so diet containing all the nutrition in the proper quantity means that is called balanced diet. Okay, उसी को क्या कहते हैं, balanced diet. So number 3 answer is balanced diet. So just put this word in that given blank space. So number 3 is the balanced diet. Now after that number 4, fourth statement is there, energy giving food. Which is the energy giving food? So कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स है हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को. एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल्सो यू हैव टू मैच विथ योर आंसर विच इज गिवन द पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो दिस इज द फोर्थ वन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन देयर. नाउ आफ्टर दैट नंबर 5. ओके, तो नंबर 5 देखेंगे. इसके बाद इसका आंसर मीन्स पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते बेटा. व्हाट इज द स्टेटमेंट इज देयर. सो मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय एडिंग ऑयल, साल्ट एंड विनेगर. ओके, यानी ऐसी एक फूड प्रिजर्विंग की प्रणाली है, एक मेथड है जिसमें ऑयल ऐड होता है, सॉल्ट और विनेगर्स को ऐड किया जाता है. उस मेथड को क्या कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड. Means so the correct answer is pickling. Okay, now the pickling is the option. Picking of the means actually K is silent here. Picking is the method which used for the preserving food. Okay, so that is the correct answer of number 5. Now we will see the next. Actually here C. Okay, so just observe your textbook also and try to understand whatever I am explaining here. So dear students, actually define the following. Okay.
ओके, कुछ हमको कंसेप्ट दिए हैं, उसको डिफाइन करना है 1 और 2 लाइन में। तो इसमें नंबर सी देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स व्हाट? ओके, न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है, उसको 1 और 2 लाइन में हमें एक्सप्लेन करना है। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिएंट्स मीन्स substances that provide nourishment to our body to keep us healthy। ठीक है, मीन्स ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, ठीक है ना, टू आवर बॉडी एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहा गया। अंडरस्टूड? सो दैट इज द फर्स्ट आंसर। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड your writing work should be continued, means just write that answer in your notebook. Now number 2, dehydration. Okay, so what is dehydration? Actually this is related to the body water, means the quantity of water. Dehydration means dying, इसको दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए, and that is dying. Okay, dying is used to reduce the water content in the food। ठीक है ना, यानी फूड में जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस करना, कम करना। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, तो वो जल्दी से सड़ जाता है, गल जाता है, उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। तो उस वाटर क्वांटिटी को कम करने के लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डाइंग प्रोसेस यूज किया जाता है। मीन्स रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट, यानी जो हम अन्न खाते हैं, हम डाइट लेते हैं, फूड जो होता है हमारा अनाज, उसमें वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने का नाम डाइंग मेथड या फिर डिहाइड्रेशन से होता है। ओके, सो दैट वाज द डिहाइड्रेशन। क्लियर? नाउ नंबर 3 वी आर सीइंग बैलेंस डाइट, मीन्स डाइट को बैलेंस करके रखना। ओके, इक्वल। सो हाउ इट विल बी एंड व्हेन इट विल बी बैलेंस? व्हेन वी अडॉप्ट, व्हेन वी take our diet on schedule, on time and in a particular quantity। ओके, पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम लेंगे, उसको शेड्यूल पे लेंगे, टाइम पे समय पे लेंगे, उस समय पे, तो हमारा जो डाइट है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें इसकी कंसेप्ट दिखती है बेटा, अ डाइट containing all nutrients in correct amounts along with water and roughage। Okay, so the concept of balanced diet is a diet, एक ऐसा diet all nutrients in the correct amount, जितने भी nutrients हैं वो correct amount में होना, ठीक है, along with water and roughage, उसमें आपका वाटर और रबेज लिया गया है। क्योंकि कैसा होता है, जनरली अगर वाटर की जो क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो उसमें हमारा जो डाइट है वो बैलेंस नहीं हो पाता, जिस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, और इसीलिए रबेज और वाटर उसमें इंक्लूड है, जिसको हमें प्रॉपर क्वांटिटी में, अमाउंट में होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, रफेज। सो व्हाट इज द रफेज? रफेज मीन्स द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज किसको बोलते हैं? फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। फॉर एग्जाम्पल सैलाड। ओके, जब हम सैलाड लेते हैं तो उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मोर एक्टिव करता है। ठीक है, मीन्स एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है या फिर हेल्प करता है। सो दैट इज रफेज, द फाइबर प्रेजेंट इन फूड, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। So I hope that student, whatever I explained here, you understood well. So just I am giving you 3 minutes. Just write it fast. Okay. In your notebook. So just do it. Well, so dear student, I hope that you completed systematically. You wrote that question answer systematically in your textbook and notebook also. Now the next one we will see here. So what is the next?
answer the following questions, means D from your textbook. This is the D. Answer the following question. Just after this we will see the answer the following question, means number D options given there. So one by one we will I am going to write here the answer. Just observe it and try to write in your notebook. Okay.